پہنچے۔ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء، معزز و محتشم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سادہ سا لاؤڈ سپیکر کریں۔ حاضرین مجلس، فتنوں سے بری اس دنیا میں اولیاء کرام اللہ کی روشن نشانیاں ہیں، اور یہ خدا شناس لوگ ہمارے محسن ہیں۔ ہم اور ہماری نسلیں ان کی احسان مند ہیں، اور یہ سچ ہے، اگر یہ لوگ یہاں نہ آتے تو آج ہمارا دامن ہدایت سے خالی ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں بر صغیر پاک و ہند کے اندر نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی صحابی آیا ہے۔ کچھ لوگوں کے تذکرے ملتے ہیں جو شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے ہیں، کالی کٹ کا راجو یا حضرت بابا رتن ہندی لال، یہ شرف صحابیت سے ممتاز ہوئے۔ اسلام یہاں حرم سے علماء کے، صوفیاء کے، اولیاء اللہ کے قافلے چلے، اور انہوں نے یہاں آ کر کے تبلیغ کی، لوگوں نے زنار توڑے اور اپنے گلے میں اسلام کا تعویذ ڈالا۔ یہ ہمارے محسن ہیں، ہم ساری زندگی ان کے احسان مند ہیں۔ بر صغیر کا سب سے پہلا صحابی جس کا میں نے تذکرہ کیا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان کے ایمان کا تذکرہ کر کے بات کو آگے بڑھاؤں، اور یہ ان کے ایمان کا واقعہ اتنا دلچسپ ہے، آپ سنیں گے تو آپ کے کلیجے ٹھر جائیں گے۔ سید اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے، اور میرے ایوان کا ایک بہت بڑا نام، وہ خود تو چلے گئے ہیں لیکن اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ اہل دانش انہیں بڑے شوق سے سنتے تھے، ٹیلی ویژن پہ ان کا پروگرام چلتا تھا، زاویہ، بابا اشفاق کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ اب ان کی کتابیں بھی مارکیٹ سے دستیاب ہیں۔ زاویہ کی پہلی جلد کے آخر پہ انہوں نے حضرت بابا رتن ہندی لال کے نام سے مضمون لکھا ہے۔ اشفاق بھائی فرماتے یہ تاجر تھے، اور مکۃ المکرمہ میں ان کا آنا جانا تھا۔ فرماتے ہیں ان کی فیروز بختی دیکھو کہ یہ ایک دن ان راہوں پہ چل پڑے جن راہوں پہ آمنہ کا لال کھڑا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، اور حضور ایک کھائی کے پاس کھڑے ہیں۔ کھائی بڑی تھی، رتن آگے بڑھے، حضور کو اٹھایا اور کھائی کے دوسرے پار کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں سے واپس پلٹے، رتن ہندی کی طرف دیکھا، اور اپنے عربی لہجے میں فرماتے ہیں جزاک اللہ تعالی، رتن ہندی اللہ تجھے جزا دے۔ بچپنے کی معصومیت،
पेशानी में नबूवत का नूर था, और जब जज़ाकल्लाह कहा तो रतन हुजूर में खूब सजाता है। वो कहते हैं ना कि लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं, इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद। इंसान अच्छे रवैये कभी भी फरामोश नहीं करता, हमेशा याद रखता है। हुजूर घर तशरीफ ले गए और ये वतन हिंदुस्तान आ गए। जिंदगी की बहारें लैलो नहार करवटें बदलते रहे। अल इख्तसार रत्न हिंदी बूढ़े हो गए, तजारत को खैराबाद कहा और अपने वतन हिंदुस्तान में ही लग के बैठ गए। फरमाते हैं कि मैं एक दिन मकान की छत पे लेटा था और मेरी आंखें क्या देखती हैं कि आसमान की छाती पे चांद बरूदत मान रहा है, सितारे झिलमिला रहे हैं। ये चांद सितारों में उलझे खोए थे। फरमाते मेरी आंखों ने एक अजीब मंजर देखा कि आसमान से चांद टूटा। फरमाते मेरा दिल डूबा, मैं डर गया शायद कि कयामत आ गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद आसमान की छाती सितारों से मुज़य्यन हुई, चांद अपनी रोशनियां आसमान पे बिखेरने लगा। फरमाते ये लम्हे मुझे याद रहे। तजारती काफिला अरब से हिंदुस्तान आया और उन्होंने आकर के तस्करा किया कि मक्का में एक इद्दियाए नबूवत है। कौम ने उनसे मुजज़ा मांगा और उन्होंने यूं उंगली का इशारा किया, चांद को खींच के कदमों में बुला लिया। वो सुकियां खजूरां उगा जान दाए, ओ गुंगियां थी गल्लां करा जान दाए, ओ पत्थरां थी कलमे पड़ा जान दाए। कतरे को समंदर जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ सवारा करते हैं। रतन कहते हैं मेरा जी चाहा कि मैं उड़ के हुजूर के कदमों में चला जाऊं। वो कहते हैं ना कि ऐ ज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहीं उठ कहीं उठा नहीं जाता। शौक की चिंगारियां सुलगने लगी, बूढ़े हो गए लेकिन इश्क बूढ़ा नहीं होता। दिल देने के लिए दिल भर के पास चले गए। दिल उसे देना चाहिए जो दिल भर हो, जो दिल भर ना हो उसे दिल नहीं देना चाहिए। हमसे जवानों ये भूल हुई है, हमने दिल उसे दिया है जो दिल भर नहीं था। और जब वो बेवफाई करता है तो उसकी बेवफाई पे रोना पड़ता है। वो ख्वाब, वो सपने, वो आने वाले कल के जो मंसूबे थे वो एक झटके में टूट गए। वो क्या मोहसिन नकवी ने कहा था कि आंखों का रंग, बात का लहजा बदल गया। वो शख्स एक शाम में कितना बदल गया, शायद वफा के खेल से उकता गया था वो, मंजिल के पास आके रास्ता बदल गया। दुनिया के महबूब ऐसे ही करते हैं, फिर रोना पड़ता है। हम अक्सर सफर में होते हैं तो गाड़ियों के पीछे बड़े अजीब और तलख जो जुमले हम पढ़ते हैं। किसी ने लिखा होता है कि प्यार से तौबा, किसी ने लिखा होता है मोहब्बत से तौबा, किसी ने लिखा होता है सनम बेवफा। और मैंने एक जवान को गुनगुनाते देखा, वो कह रहा था उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों। और मैंने कहा भाई ऐसी बस्ती में दिल्ली क्यों दिया था, ऐसे शहर में दिल्ली क्यों दिया था जिस शहर के लोग बेवफा थे। काश के दिल कूचा मुस्तफा में दिया होता। आवाज आनी थी कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। हमने दिल वहां दिया जो दिल पर नहीं था। बेवफाई हुई तो रोना पड़ा। दोस्तों उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं, वो खाक में मिलेंगे। लेकिन जो आंसू रसूलुल्लाह की मोहब्बत में बहेंगे वो खाक में नहीं मिलेंगे, वो कयामत के दिन मेजान पे काम आएंगे। एक शख्स सारी जिंदगी बादशाहों की मदा में लिखता है और बादशाहों की बारगाह का मकबूल ठहरता है। इम्तिहान आ गया, फालज का अटैक हुआ, बिस्तरे मर्ग पे आ गिरा, जिंदगी मौत से जंग लड़ने लगा। नजरें दरवाजे पर लग गई, अभी कोई फूल लाएगा, अभी कोई मोहब्बत का गीत गाएगा। क्योंकि गम उस वक्त तकलीफ देता है जब कोई गम गुसार ना हो। जब गम बांटने वाले हो तो गम
गलत हो जाता है, लेकिन कोई भी ना आया तो दिल का आईना टूट गया। और क्या कहता है कि छोड़ बुसीरी, ये दुनिया तो बेवफा है, सारी जिंदगी इनकी मदा में लिखा, आज मुश्किल में आया तो कोई मुश्किल कुशाई के लिए नहीं आया। कहा छोड़ देता हूं इस बेवफा दुनिया को, हां कलम नहीं तोड़ूंगा, किरतास नहीं फाड़ूंगा। कहा पहले दुनिया वालों की मदा में लिखा, कुछ ना मिला। कहा अब नगमा लिखूंगा जो शहनशाहों का शहनशाह है, अब नगमा लिखूंगा जो इमामुल अंबिया है, जो आमिना का लाल है। कलम लेके लिखता है मौला यसल्ले वसल्लम दायमन आबादा अला हबीबी का खैरिल खल्की कुल्लिहिम। और यार इतनी रोशनियां, इतने उजाले फैलते हैं। बुसीरी नगमा लिखता है और फिर आंखें बंद करके कहता है मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, मुंह छोटा बात बड़ी। दुआ करो अल्लाह हमें हुजूर की जियारत नसीब फरमाए। हुजूर का नगमा लिखा और सो गया। आका ख्वाब में तशरीफ ले आए, फरमाया उठो बुसीरी, जो कसीदा मेरी शान में लिखा है जरा पढ़ के सुनाओ ना। कदमों में खड़े हो गए, अदब के तमाम तर तकाजों को बजा लाते हुए हुजूर का कसीदा पढ़ते हैं। यार बेटा, शागिर्द, मुरीद अपने अपने रिश्तों के साथ फख्र जानता है। कब? जब वो इल्म की गुजरगाहों से गुजरता हुआ आला मसनद पे बैठता है। बेटा बाप के कदमों में, शागिर्द उस्ताद के कदमों में, और मुरीद शेख के कदमों में। मैंने बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशैख के कदमों में कुरान की बोलियां बोली हैं। ये मेरा फख्र है, उलमा के झुरमट में बैठा हूं, मेरा एजाज है, मेरा शरफ है। लेकिन मैं कहता हूं ये सारे शरफ, ये सारे एजाज, ये सारे फख्र अपनी जगह पर। बुसीरी को देखो कहां खड़े हैं, जहां हस्सान बिन साबित खड़े होके मोहम्मद की नाते पढ़ा करते थे। आज एजाज मिला, हुजूर फरमाते सुनाओ ना। बुसीरी क्या पढ़ते हैं, आप भी पढ़िए, मौला या सल्ली नगमा पढ़ के सुनाते हैं। और यार हुजूर साथ साथ झूमते हैं। दस्ते शिफा फेरा और चादर उतारी, फरमाया बेटे बुसीरी ये तेरा इनाम है। सुबह उठते हैं, खुशबुओं के काफले भी उतरे थे जो चादर ख्वाब में अता फरमाई थी। सुबह उठते हैं तो वो सराने मौजूद भी होती है। दिल उसे दो जो दिल बर हो। रतन दिल देने के लिए दिल बर के पास चला गया। 35-40 साल बाद मुलाकात होने जा रही है। इस बूढ़े को मेरे महबूब ने आते हुए देखा। हुजूर बच्चे थे, ये उस वक्त जवान थे। अब हुजूर जवान है, ये बूढ़े हो गए हैं। रतन को हुजूर ने आते हुए देखा और देख करके क्या फरमाया? फरमाया अरत्नुन हिंदीयुन, आप रत्न हिंदी हो? काला नाम, जी मैं रत्न हिंदी हूं, लेकिन ये तो बताएं कि आपको किसने बताया? फरमाया जिस अल्लाह ने मुझे नबी बनाया। फरमाया रत्न हिंदी तुम्हें याद हो कि ना याद हो, एक जमाना था मैं बच्चा था, आप जवान थे, मैं खाई के पास खड़ा था, आपने मुझे दूसरे पार किया था। फरमाया मैं मोहम्मद तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहा हूं, लाओ मुझे अपना हाथ दो, आज मैं तुम्हें जहन्नम की खाई से पार लगाऊंगा। बीते हुए गुजरे हुए हसी लम्हे याद आए, कोई मिला था, किसी ने जज़ाकल्लाह बोला था। लहजे में अगर रस हो तो दो बोल बहुत हैं। इंसान को रहती है मोहब्बत की जुबान याद, अच्छे रवैये इंसान भूलता नहीं। बर्रे सगीर में इस्लाम लाने वाला ये सहाबी रसूल जिनका नामे नामी इसमें गरामी हजरत बाबा रत्न हिंदी लाल रदी अल्लाह ताला अन्हु है। इस्लाम यहां फैला कैसे? ये हरम से लोग आए और उन्होंने यहां आकर के तबलीग की। लोगों ने जुन्नार तोड़े और अपने गले में इस्लाम का तावीज डाला। हरम से एक जवान चला था। इस्लाम यहां कैसे आया? उसकी उम्र 17 साल थी और नाम उसका मोहम्मद बिन कासिम था। आपको याद होगा, जो तारीख के तालिब इल्म है वो जानते कि जब हमारे यहां सिंध के अंदर एक नहीद नामी बेटी ने पुकारा था
हज्जाज बिन यूसुफ को जब राजा दहर के डाकुओं ने उस बेटी के सर से रिदा खींची थी तो उसने कहा था, या अलल हज्जाज, उस मदद के लिए किस शब्द पुकारा? ये उस समाज का कोई काबिल जिक्र इंसान नहीं, बहुत बड़ा बदमाश आदमी था। इसके हाथ कई मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। जब एक बेटी हज्जाज को पुकारती है तो वो आगे से क्या कहता है? बहन मैं हाजिर हूं, बहन मैं हाजिर हूं। फिर वो अपने भतीजे, अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को यहां भेजता है और वो हिंदुस्तान के तख्त व ताज को रोनता हुआ यहां आता है और उस बरहना सर बेटी के सर पर इज्जत की रिदा रख देता है। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहां सिंध आ रहा तो जगह जगह पे खड़े होकर वो चौंक सा जाता और यही कहता, बहन मैं हाजिर, बहन मैं हाजिर। दोस्त पूछते कि अचानक से ये तबीयत में हलचल क्यों आ जाती है? तो मोहम्मद बिन कासिम कहता है, मैं चश्मे तसव्वुरात में अपनी बहन को देखता हूं और वो हरम की तरफ मुंह करके पुकार रही है, कासिम आ जाओ, मेरी मदद के लिए आ जाओ। तो कहा फिर मैं उसे कहता हूं कि बहन मैं हाजिर हूं। मोहम्मद बिन कासिम आया अरब से और अजम में एक बेटी तड़पी तो वो उसकी इज्जत को बचा के ले जाता है। सद अफसोस यार, आज कितनी बेटियां बेआबरू हुई और कोई भी मोहम्मद बिन कासिम का जानशीन ना नजर आया। मुझे बर्मा की वो 1500 बेटियां नहीं भूलती जिन्होंने खुले आसमान तले खड़े होकर जो है वो हमें आवाजें दी कि हमारी आबरू को बचा लो। उन बेटियों को बर्मी कुत्तों के आगे डाला गया, उनके जिस्मों से लबास छीना गया और हवस का शिकार बनी वो बेटियां। लेकिन हम थे कि लंबी तान के सोए थे, हम थे कि ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे थे, हम थे कि कानों में हमने जो है वो ठोस ली की कोई चीज कि हम तुम्हारी पुकार को नहीं सुनेंगे, तुम्हारे घर की आग है खुद ही बुझाओ। तो एक बेटी ने पुकारा, भाई अरब से आया, और 1500 बेटियां रोती रही लेकिन कोई भी ना उनकी आबरू बचा सका। सुनन दारमी का हवाला है, एक शख्स हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करते कि आका मैंने जमाने जाहलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। फरमाया उसका कसूर क्या था? कहा हुजूर वो जहालत का जमाना था और बेटियां मनहूस थी, आबरू बचाने का रास्ता या घड़ा खोद के मट्टी डाल दी जाती, मैंने उसको पानी के कुएं में फेंक दिया। और कहता हुजूर जब मैंने अपनी बेटी को पानी के कुएं में फेंका और वो गोता खा के ऊपर आई, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख करके कहती, या आबाताहु, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। जब ये बात की तो मेरे नबी की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे फिर बताओ कि जब तुमने अपनी बेटी को पानी में फेंका और वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और देख करके उसने तुझे क्या कहा? कहा उसने कहा, या आबाताहु, हाय अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर की सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। और यार एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर उस पर अश्कबार हो। हातिम ताई की बेटी बरहना सर आई ना तो हुजूर ने मुजम्मल की चादर उसके सर पे रखी। अर्ज किया गया कि हुजूर काफिरा है। हुजूर फरमाते बेटी तो बेटी होती है, काफिर की हो या मोमिन की हो, वो काफिरों की बेटियों के सरों पर रिदा रखे। एक बेटी पानी के कुएं में डूब के मरे तो हुजूर इस कदर दुखी हुए हों, और जब 1500 बेटियों को बेआबरू किया होगा, बताओ गुंबदे हजरा का मकी किस कदर दुखी हुए होंगे। तो हाजरीन मजलिस, बात को आगे बढ़ा देता हूं, ये एक अलग से दुखड़ा है। मोहम्मद बिन कासिम यहां आया और उस बेटी के सर पर रिदा रखी और फिर वो यहां हमारे 4 साल रहा और उसने 4 साल में मकरान से मुल्तान तक सफर किया। अपने किरदार से, अपने अखलाक से 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना जाता है। यहां इस्लाम लाए कौन? औलिया किराम। और औलिया किराम का सबसे बड़ा वस्फ क्या था? वो अखलाक के पैकर हुआ करते थे। उनका किरदार मौसर होता था, गुफ्तार मौसर नहीं, किरदार मौसर होता है। और उन्होंने अपने किरदार से लोगों को बदला था। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं मुबल्लिग वो होता है
जो जुबान से गुफ्तगू करे, अल्फाज अदा करे और उसका दिल सरापा कशकोल बन जाए और अल्लाह की दहलीज में खड़ा हो जाए और कहे कि या अल्लाह असर की शरीनी बना के इनके दिलों में उतार दे। मुबल्लिग कौन होता है? जो जुबान से अल्फाज अदा करे और दिल सरापा कशकोल बने और ये अल्लाह से कहे या अल्लाह हदायत का नूर इन्हें अता फरमा दे। तकरीर बतौर फन ना हो, वो आईने के सामने खड़े होकर हाथ ऊपर नीचे वाली कैफियत ना हो, टूटा लहजा हो जैसा भी है, लेकिन अंदर खुलूस का के सोते फूट रहे हो और दिल सरापे कशकोल बने, कहे या अल्लाह ये मेरे सामने जो बैठे हैं मैं तेरी और तेरे महबूब की बातें सुना रहा हूं, इन्हें आशिक़े रसूल बना दे, इन्हें अपनी मोहब्बत का जोहर दे दे। तो यकीन मानो यही वो चीज थी जो मोहम्मद बिन कासिम लेकर अरब से आए थे और इस किरदार के वो हामिल थे और 1 लाख इंसानों को मोहम्मद अरबी का गुलाम बना के चले जाते। वो एक जमाना था, वो हमारे हुक्कामा उतिब्बा, उनका काम क्या था? वो दवा देते हैं, वो तबलीग करते हैं और रात को आके मुसल्ला बिछा लेते थे और क्या कहते हैं कि या अल्लाह दवा दे आए हैं, शफा तूने देनी है, या अल्लाह तेरा और तेरे महबूब का नगमा छेड़ आए हैं, अब दिलों में असर बना के तूने डालना है। वो सहरी के वक्त जो उठ के सजदे करते थे, रो के दुआएं करते थे, दरअसल वो उनका किरदार लोगों को बदला करता था। मुझे एक मेरा दोस्त कहता है कि मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं तबलीग करूं, मेरे पास कुछ वक्त बचता है तो मैं उस वक्त में जो है वो लोगों तक पहुंच करके अल्लाह रसूल की बात सुनाऊं। तो कहते मैं एक शख्स के पास चला गया और मैंने कहा मेरे जज्बे बड़े जवां हैं तो मुझे कोई रहनुमाई दें, तबलीग के लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है, मुझे आप सिखाएं। तो फरमाते हैं कि उन्होंने क्लास से एक बच्चे को उठाया और कहा ये इसकी उम्र देखो 10-12 साल उम्र थी, कहा इसको मैंने तकरीर करना सिखाई और इसने फलां जगह तकरीर की, लोगों ने इस पर 50-50 के नोट फेंके। तो वो कहता है हजरत पैसा कमाने का फन मेरे पास है, मैं ताजिर हूं, पैसे की कहानी नहीं, मैं पैसा कमाने का फन नहीं सीखने आया, उसके लिए मेरे पास अलग से फन मौजूद है, मैं माइशी तौर पे मजबूत हूं, मैं तो आपसे दीन सीखने आया हूं, कैसे लोगों तक पैगाम हक पहुंचाया जाए। मैंने कहा काश के वो इस मिजाज के हामिल होते। फरमाते कि हुजूर फरमाते असहद बिलाल इंदल्लाहि अशहद, बिलाल की असहद अल्लाह के यहां अशहद है। उसे कहते बेटे खुलूस से काम करना, टूटे लहजे भी दिलों में उतर जाएंगे। असल किरदार लोगों को बदलता है और आज वो झलक हमारे अंदर नहीं है। लंबी चौड़ी तकरीरों के वो हामिल नहीं थे, मुख्तसर कलाम लेकिन दिलों में उतर जाते थे। बायजीद बुस्तामी का नाम आप लोगों ने सुना है, तसव्वुफ के 10 बड़े इमामों में से एक इमाम गुजरे। 12 साल की मेहनत से अल्लाह के घर तक पहुंचे, हर कदम पे सजदा किया। जब अल्लाह के घर में पहुंचे तो सामने बैतुल्लाह नजर आया तो निगाहें झुका ली, कहा अगर पत्थर ही देखने थे तो ये बुस्ताम में भी बड़े थे। दूसरी नजर उठाई, काबा भी नजर आया, काबे वाला भी नजर आया, नजर फिर झुका ली, कहा या अल्लाह दरमियान में पत्थर क्यों है। तीसरी नजर उठी, जिधर देखते हैं उधर ही रब के जलवे नजर आते हैं। इतना बड़ा शख्स है बायजीद। आपके शहर बुस्तान में एक खातून ने घर बनाया और अपनी अदाओं से जवानों को लूटने लगी। किसी ने बायजीद को कहा हजरत आपका मनसब आपसे कुछ तकाजा चाहता है, आपका शहर उजड़ रहा है, क्योंकि कायनात का सबसे हंसी चेहरा वो है जो जिनसी कालक से महफूज है। बायजीद मुसल्ला लेकर उसके डेरे पर चले गए, जो जवान आता देखता वापस पलट जाता, हया माने था। उस खातून ने कहा आज कोई भी गाहक नहीं आया, आशना नहीं आया। उसने अपनी मुलाजिमा को कहा कि नीचे देखो हालात कैसे हैं। वो नीचे आई तो उसने देखा कि बायजीद थे। उसने कहा नीचे तो मौलवी साहब है और वो अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। वो गुस्से में आ गई कि जाओ मौलवी से कहो कि अल्लाह अल्लाह करनी है तो मस्जिद में करो, ये हमारा धंधा है, हमारा कारोबार है। बायजीद ने जो उसका बनता था उसकी हथेली पे रखा, कहा जो कहूंगा पाबंद हूं, कहा हां पाबंद हूं। अच्छा उसने ये भी नहीं कहा कि मौलाना माना कि हम अच्छे लोग नहीं, ये बस्ती गुनाहगारों की है, लेकिन इतना तो ख्याल एहसास रखते हैं कि आपके पीछे लोग नमाजें पढ़ते हैं, कम अज कम उन लोगों का तो ख्याल कीजिए। चिट्टी चादर फुमना वाली तो दाग ना लामी जनिया, हशर दिहाड़े फेर ना आखी हाल रब्बा की बनिया।
اس نے کوئی تبلیغ نہیں کی گئے حضرت لے جائیے پیسے، مانا کہ ہم اچھے نہیں ہیں لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں. اس نے کہا لائیے پیسے. اس کے سامنے کوئی شرابی ہو یا متقی ہو، وہ پیسے کے لیے کام کرتی تھی. جو بنتا ہتھیلی پہ رکھا، کہا جو کہوں گا وہ کرو گی. کہا ہاں پابند ہوں. بایزید نے لباس دیا، کہا بیٹے یہ حیا والا لباس پہن کے آؤ، غسل کر آؤ. اس کو مصلے پہ کھڑا کیا. بایزید بھی ساتھ کھڑے ہوئے. قیام، رکوع، سجدے میں آئے تو بایزید کی آنکھیں چھلک پڑی اور کیا کہتے، یا اللہ یہاں تک لے آیا ہوں. یہاں تک لانا بایزید کا کام تھا، آگے من کی دنیا کا بدلنا مولا تیرے ہاتھ میں ہے. سجدے میں سر رکھ کے بایزید خوب روئے کہ یا اللہ اس بیٹی کو ہدایت دے دے. اور ادھر جب سجدے میں سر رکھا اس خاتون نے تو رحمت کے قافلے اترے، چھم چھم برکھا برسی اور ندامت کے بھی قافلے اترے. اپنے کیے پر نادم ہوئی، ہاتھ جوڑ کے سجدے میں عرض کرتی ہے مالک میں نے کہاں زندگی گزار دی، کہاں بھٹکی رہی، تیری بندی تیری دہلیز پہ آ گئی ہے، اب تو اسے معاف کر دے. اور یار یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے، جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، میں اس کے گناہ کو لوہے محفوظ سے مٹا دیتا ہوں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. جو گناہ چھوڑ دیتے ہیں عادت باری تعالیٰ اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے. ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کے حکموں کو توڑتا رہا، اس کی دہلیز سے دور چلا گیا. اور جب 40 سال عمر ہوئی تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں کچھ سفید بال نظر آئے تو خود پہ ندامت سی ہونے لگی. کہا مالک تجھے بڑا ناراض کیا ہے، تیری دہلیز کا بھاگا ہوا یہ سرکش تیرا بندہ آج شرم سی آ رہی ہے خود پہ، مر تو جانا ہے، سانسیں ٹوٹنے والی ہیں. اور جی ہی جی میں کہتا ہے یا اللہ اگر میں آ جاؤں تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، میرے لیے کوئی معافی کا کوئی راستہ ہے. ہاتف سے آواز آتی ہے 20 سال تو نے میری فرما برداری کی، میں نے تیرے سجدوں کو قبول کیا، پھر 20 سال میری دہلیز سے دور چلا گیا، میرے حکموں کو توڑتا رہا. کہا آج 40 سال بعد تو میرے پاس آیا ہے اور معذرت چاہ رہا ہے. ہاتف سے آواز آتی ہے آ گیا ہے، تیرا رب بڑا رحیم ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، تو نے معافی مانگی ہے، میں نے تیرے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیے. وہ بھائی آج معافی مانگیں گے تو وہ معاف کرے گا. علامہ سعدی کہتے ہیں شارح مسلم مفسر قرآن فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا. اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا. ہاتف سے آواز آتی ہے لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. کاش کہ یہ کیفیت ہماری بن جائے کہ اللہ کے گھر میں گئے، اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے بھائی، ہم کو نیکوکار نہیں بڑے گناہگار ہیں. ایک بزرگ کہتے ہیں گناہ کر کے کنکر گھر میں پھینکا کرو اور نتیجہ دیکھ لینا کہ چند دن کے اندر گھر بھر جائے گا. ہم گناہوں کی راہوں کے مسافر ہیں، ہمارا دامن داغدار ہے. ایک بزرگ عبداللہ بن مبارک، کتنا بڑا نام ہے، لبیک کہا تو وہی زمین پہ گر پے. لوگوں نے ہوش دلایا تو پوچھا حضرت یہ کیفیت کیوں بنی؟ فرماتے ڈر لگا کہ کہیں لا لبیک کی آواز نہ آ جائے. یہ جو سیلفیاں وہاں جا کے بناتے کبھی کیفیت بنی ہے؟ عبداللہ بن مبارک بہت بڑا نام ہے بھائی، بہت بڑا نام، اور یہ ان کی کیفیت ہے. یہ کیسی ترغیب، یہ کیسی تبلیغ ہے کہ حرم کعبہ میں بھی نہیں ہم باز آتے. اور وہاں تو کیفیت ہونی چاہیے نا کہ یا اللہ گناہ لے کے آئے ہیں، تیری چوکھٹ پہ آئے ہیں، سوالی بن کے آئے ہیں. علامہ سعدی کہتے ایک شخص اللہ کے گھر میں سنگ ریزوں پہ سر رکھ کے رو رہا تھا اور کیا کہتے اللہ مجھے اندھا اٹھانا، مجھے لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ کرنا. یہ درد میں ڈوبی ہوئی آواز کسی گناہگار کی تھی، کسی اوگن ہار کی تھی؟ اور نہیں بھائی، آگے بڑھ کر دیکھا گیا تو وقت کا شیخ عبد القادر جیلانی تھا. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ جوان ہے جس کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی ہیں. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والے، کیا ہماری یہ کیفیت بنتی؟ خیر سیدی فرماتے کہ جب اس نے لبیک کہا نا تو ہاتف سے آواز آئی لا لبیک، کہ بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں. جو سال نوجوان تھا وہ چونک سا گیا. اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ تو کہا بیٹے یہ آواز میں 70 سال سے سن رہا ہوں. وہ جوان کہتے ہیں بابا پھر بھی آتے ہو؟
जब यह कहा तो कलेजा फटने लगा, रो के कहा कि बता बेटे इस दर के अलावा कोई दर है जहां जाके दामन फैलाऊं। बस इतना कहना था कि रहमत खुदाबंदी जोश में आई। हातिफ से आवाज आती है कि जा बूढ़े, हमने तेरे 70 के 70 हज कबूल फरमा लिए। वो माफी मांगने वालों को माफ करता है। हमारे मुबल्लिगीन का तरीका तबलीग क्या है? उस खातून को सजदे में झुकाया और फिर रो के बायजीद कहते या अल्लाह यहां तक ले आया हूं, आगे दिल की दुनिया का बदलना मौला तेरे हाथ में है। और उधर नदामत के काफले उतरे, छम छम आंखें बरस रही है, सजदे से सर उठाती है तो वक़्त की वलिया बन जाती है और फिर उसकी नस्ल से 90 वली पैदा हुए। किरदार मुयस्सर होता है भाई, गुफ्तार मुयस्सर नहीं, किरदार मुयस्सर होता है। मैंने एक बहुत बड़े दानिशवर थे, उनसे गुजारिश की कि मुझे आप कोई नसीहत फरमाएं, तो उन्होंने एक ही बात की कि बेटा खुद को मुयस्सर बना लो। आप मुयस्सर हो तो आपका पैगाम भी मुयस्सर है, अगर जात मुयस्सर ना हो तो पैगाम भी मुयस्सर नहीं होता। हजरत सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, कितना बड़ा नाम है। आपसे किसी ने कहा हजरत सब्र क्या है, सब्र की तारीफ बयान करे। सिर्री सक्ती रहमतुल्लाह अलैह सब्र की तारीफ बयान करने लगे तो आपके टांग पे बिच्छू चढ़ गया। वो खसलतन डंग मारता है, उसने डंग मारा, आपने टांग को जुम्बश नहीं होने दिया। लोग ये तमाशा साथ साथ दे रहे हैं, तारीफ भी सुन रहे हैं। जब बात मुकम्मल हुई तो आपने उसको अपने टांग से हटाया। दोस्तों ने कहा हजरत वो जालिम काट रहा था, नोच रहा था आपको और आप उसको हटा ही देते। तो सिर्री सक्ती फरमाते मुझे अल्लाह से हया आ गई थी कि मैं लोगों को सब्र की दावत दे रहा हूं और खुद सब्र नहीं कर रहा। किरदार बदलते हैं भाई। सिर्री सक्ती गुजरते एक शराबी को देखते, गंदी नाली में उसका मुंह था और जुबान से अल्लाह अल्लाह कह रहा था। आपने उठाया, मुंह धोया, इतना कह के गुजर गया। ओ बंदे खुदा, नापाक मुंह से उस पाक जात का नाम ले रहे हो। बस ये तबलीग है। चले गए, तहज्जुद के वक्त मस्जिद में गए। फरमाते मैंने क्या देखा कि जो कल शराब के नशे में गंदी नाली में पड़ा था वो मुझसे पहले मुसल्ले पे खड़ा है। खुश हुए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन सवाल अल्लाह से कर दी, या अल्लाह ये तो बहुत बड़ा शराबी था। हातिफ से आवाज आई, सिर्री सक्ती तूने हमारी खातिर इसका मुंह धोया, हमने तेरी खातिर इसका दिल धो दिया। अमल की तासीर होती है यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार अखलाक अच्छे होने चाहिए, यकीन जानो दिल करता है अच्छा बनने को। कुछ लोग गुजरते ये कहे ना यार नमाज का वक्त है, चलो नमाज पढ़ने, जी करता है सजदे करने को। लेकिन कुछ लोग 3-3 घंटे की तकरीर करते हैं, इधर से सुनने इधर से निकाल देते हैं, हवा की दोष पे उड़ जाती है। असल मुयस्सर जो होता है ना वो किरदार होता है। एक बहुत बड़े मुबल्लिग खाना खा रहे थे और एक जारूब बाहर झाड़ू दे रहा था। बात को मुख्तसर कर लेते हैं। झाड़ू दे रहा था तो उन्होंने आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। उसने नजर उठा के देखी तो अपने कानों पे यकीन ना हुआ, काम में मसरूफ हो गए। फिर आवाज दी कि बेटे खाना खा लो। इधर उधर उसने नजर उठाई तो कोई भी नजर ना आया, तो अपनी तरफ इशारा दे के कहते हजरत मुझे कह रहे? कहा हां बेटे मैं आपको कह रहा हूं खाना खा लो। अच्छा, उसने झाड़ू वहां रखा तो क्या उसने जाकर हाथ धोए फिर दस्तरखान पे आके बैठा? नहीं, उसने झाड़ू वहीं रखा और दौड़ लगा दी। थोड़ी देर बाद वापस आया, अपने साथ अपनी बीवी अपने बच्चों को लाया और कहता है हजरत खाना बाद में खाऊंगा, मैं ईसाई हूं, मुझे मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। और यार आज तो हालात बदल गए हैं। हमारा तो इश्तिहार पे नाम छोटा लिखा जाए ना, वहां झगड़ा हो जाता है। हमारे नाम के साथ अलकाबात थोड़े हों तो झगड़ा होता है, नाम ऊपर नीचे आ जाए तो फिर भी मसला बनता है। आज कोई बराबर आकर बैठ जाए तो हम कहते हैं ये तो बदतमीज है। ये रवैये है ना भाई,
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے ہیں تو کچھ غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے، تو وہ دوڑ کر کے گئے اور کہا حضور ہمارے مہمان بنے، وہیں زمین پہ بیٹھ کے کھانا کھانا شروع کر دی۔ تربیت کا اثر تھا نا، وہ جانتے تھے کہ یہ کس نانا کے بیٹے ہیں، جو ایک جگہ کھانے کا وقت ہوا تو کسی نے کہا میں بکری ذبح کروں گا، کسی نے کہا میں کھال اتاروں گا، کسی نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ حضور فرماتے کھانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت ہے، میں محمد جنگل سے لکڑیاں لے کے آؤں گا۔ اور کس سٹیٹس کی ہم بات کرتے ہیں، تکبر سے بھرے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ اس مبلغ کے اس جملے نے اس کو بدلا، صرف اتنے کا بیٹا کھانا کھا لو۔ آج کوئی ماڑا بندہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں وہاں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھ، 1.25 مرتبہ پڑھنا، اس سے کم پڑھنا بھی نہیں۔ اسے نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کے پاس صرف آنے جانے کا کرایہ ہے، اور ایک کلف لگے کپڑوں میں آتا تو اس کو کہتے کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ جب رویے ایسے ہوں گے تو لوگوں کو دین کیسے ملے گا؟ آخری بات کو سمیٹ لیتے ہیں۔ واصف علی واصف نے ایک ادارہ بنایا اور وہ دن بدن خسارے میں جانے لگا۔ کسی نے کہا حضرت ادارے اس طرح تو بند ہو جائیں گے جس طرح آپ چلا رہے ہو۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا میں ادارہ چلا رہا ہوں؟ کہا کسی کو فیس معاف کر رہے ہو، کسی کو کتابیں فری دے رہے ہو، فائدہ تو نہ ہوا؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرماتے میں تو اپنے جنازے کے لیے بندے اکٹھے کر رہا ہوں، میں اپنے جنازے کے لیے۔ یہ جو ہم بعض کا بڑا کراؤڈ دیکھتے ہیں نا، بڑے لوگ ہیں 10,000 لوگ، کسی نے وہ حکیم عبدالحی صاحب سے کہا کہ حضرت سنا ہے جس جنازے میں 100 بندے ہوں اللہ مرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ آپ فرماتے وہ بندوں کی بات کی گئی ہے، جنازوں میں جھوٹیں اکٹھی ہوئی ہوتی ہیں، جنازے کی دعا تک نہیں آتی۔ تو واصف علی واصف جن لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا نا، ان لوگوں کو اکٹھا کر رہا تھا جو صفوں میں کھڑے ہو کر اس کا لیے روتے اور رو کے دعا کرتے۔ اور صاحبو یہ زندگی تھوڑی سی ہے، اپنے عمل سے لوگوں کو بدلیے۔ میں یہاں کیا ہوں، میری نجی زندگی کیسی ہے، دعا کرو اللہ مجھے اچھا بنا دے، میں یہ دعا کرتا ہوں۔ اور آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کروں، ہم اپنی زندگی کو ستھرا کر لیں، مزین کر لیں، عمل والا بنا لیں، تو یقین جانیے آپ کی خاموشی بھی لوگوں کو تبلیغ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلاف کے جذبوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ماشاءاللہ گفتگو آپ نے سنی، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ صاحب کے ملک کر دیجئے، قبلہ صاحب دعا فرمائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ لنگر کا اہتمام ہے مسجد کے اوپر والے حال میں، بڑے آرام کے ساتھ آپ نے جا کے لنگر کھانا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ بعد جماعت نماز پڑھی جائے گی، ایک دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ کل شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ کا ملک فرما دیے اور دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی ٹھیک ہے، میرے مالک جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب تشریف لائے گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ زندگی شان کی، موت ایمان کی عطا فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی جناب قاری مجتبیٰ صاحب، بدرالدجا ہاشمی صاحب، اے اللہ ان کی کاوش محنت جستجو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے میرے مالک ان کی خدمات دیریاں قبول فرما۔ میرے مالک علماء تشریف لائے سرپرستی فرمائی، اے اللہ ان کا آنا تشریف لانا قبول فرما، ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے احباب آئے اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے میرے مالک ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا منور خوشبودار بنائے، اچھے اعمال قبول فرما۔ اگر کوئی غلطی سرزد ہوئی ہو تو اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما۔ میرے مالک ہمیں ساری زندگی اپنوں کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وصحبہ۔